যদি আপনি ব্যাংকের কাছে লোন চাইতে যান, সবাইকে কি ব্যাংক লোন দিয়ে দেয়? দেখবেন ব্যাংক যাদেরকে লোন দেয় না, তাদের সবার মাঝে একটা সিম্পল কোয়ালিটি খুঁজে পাবো। সেটা হলো ব্যাংক তাদেরকেই লোন দেয় যাদের লোনের প্রয়োজন নেই। ট্রেডিং এ তারাই সফল হতে পারবে যারা শুধুমাত্র ট্রেডিং কে এক্সপ্লোর করার কথা। সে যদি মনে করে যে আমি ট্রেডিং থেকে উপার্জন করব, হবে না বস, মার্কেট তাকে ফাঁসিয়ে দেবে। নিউ ট্রেডার্সের জন্য একজন ভালো মেন্টর খুঁজুন। মেন্টর খুঁজে তার সান্নিধ্য লাভ করুন এবং তার দেখানো রাস্তায় অন্ধ হয়ে পাই টু পাই চলতে থাকুন। যারা নতুন ট্রেডার হতে চাইছে তাদের জন্য কিছু পরামর্শ। নতুন ট্রেডারদের হওয়ার জন্য প্রথম পরামর্শ দেখুন, প্রথমত হচ্ছে গিয়ে মার্কেটকে কখনোই মনে করবেন এটা যে সবার পারসেপশন মার্কেট, ইভেন আমারও, আমি যেদিনকে প্রথম আমার ট্রেড পাঞ্চ করি না 2014-এ, আমার ধারণা ছিল আমি একটা সাইড রোজগার উপার্জন করব, রানিং যে প্রফেশন ছিল তার পাশাপাশি একটা উপার্জন স্টার্ট করব। কিন্তু হয়েছে বিপরীত। একটা কথা খুব সিম্পল, যদি আপনি ব্যাংকের কাছে লোন চাইতে যান, সবাইকে কি ব্যাংক লোন দিয়ে দেয়? না, কখনোই দেয় না। দেখবেন ব্যাংক যাদেরকে লোন দেয় না, তাদের সবার মাঝে একটা সিম্পল কোয়ালিটি খুঁজে পাবেন। সেটা হলো ব্যাংক তাদেরকেই লোন দেয় যাদের লোনের প্রয়োজন নেই। একটা কমন ফ্যাক্টর, ব্যাংক তাদেরকেই লোন দেয় যাদের লোনের প্রয়োজনই নেই। যাদের লোনের প্রয়োজন অ্যাকচুয়ালি, তাদেরকে ব্যাংক কখনো লোন দেবে না। তো সেম থিং অ্যাপ্লিকেবল ইন আওয়ার ট্রেডিং। কীভাবে? ট্রেডিংয়ে তারাই সফল হতে পারবে যারা শুধুমাত্র ট্রেডিংকে এক্সপ্লোর করার কথা ভাববে। সে যদি মনে করে যে আমি ট্রেডিং থেকে উপার্জন করব, হবে না বস, মার্কেট তাকে ফাঁসিয়ে দেবে। ট্রেডিং থেকে উপার্জন করার চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে। অর্থাৎ একটা কথা আছে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায়, আমি ওখান থেকে অনেকটা ইন্সপায়ার হয়েছি, যে সুখে দুঃখে সমকৃতে লাভ লোভ জয়া যে তৎ সাধিয়ত পরিচায়ত। অর্থাৎ সুখ দুঃখে সমান মনোভাবাপন্ন, কি প্রফিট হলো কি লস হলো কোনো যায় আসে না, দ্যাট ইজ আওয়ার পার্ট অফ বিজনেস। তো যদি আপনি নিজেকে নিউট্রাল করতে পারেন, এই প্রফিট লসের ঝঞ্ঝাট থেকে বার করে শুধুমাত্র প্রসেসে ধ্যান দিতে পারেন, এবং ধ্যান দিতে হবে আপনাকে, এবং সেই ধ্যান দেওয়ানোর জন্য সবার প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মেন্টর। কারণ এই যে মাইন্ডসেটটা কে বানাবে? মাইন্ডসেট বানাতে গেলে যার অলরেডি সেরকম মাইন্ডসেট আছে, বাস তার কাছে যেতে হবে এবং তাকে দেখে শিখতে হবে। তো প্রথমত নিউ ট্রেডার্সের জন্য একজন ভালো মেন্টর খুঁজুন। মেন্টর খুঁজে তার সান্নিধ্য লাভ করুন এবং তার দেখানো রাস্তায় অন্ধ হয়ে পাই টু পাই চলতে থাকুন, একদম অন্ধ হয়ে। সে যদি ভুল শেখায়, ভুলই শিখুন। দেখুন, আমাদের প্রাচীন যদি আমাদের সংস্কৃতিকে যদি স্টাডি করি না, তাহলে একটা কথা পাবো, ঈশ্বরের থেকেও না গুরুকে বেশি আগে রাখা হয়েছে। আমাদের সভ্যতায় ঈশ্বরের থেকেও গুরুকে আগে রাখা হয়েছে। কোনো মন্দিরে যদি সামনে গুরু থাকে না, আমাকে ঈশ্বরকে প্রণাম করার আগে গুরুকে প্রণাম করতে হবে। তো ঈশ্বরের থেকে আগে গুরুকে রাখা হয়েছে। তো যে গুরুর কাছে আপনি যাচ্ছেন শিক্ষা নেওয়ার জন্য, সেই গুরু যেটা বলছে তার বাইরে আমাকে এক কদমও পা ফেলা যাবে না। যদি স্বয়ং ঈশ্বরও বলে যে তুই এটা ভুল করছিস, তাও সেটাই করতে হবে। কারণ যদি এরকম কোনোদিন হয় যে তোমাকে সে ঈশ্বর বলছে যে তুই এটা ভুল করছিস, তুমি তখন ঈশ্বরকে বলবে যে এটা আমার গুরু বলেছে করতে, আমি করব। দেখবে ঈশ্বরও তোমাকে আশীর্বাদ প্রদান করবে যে বেটা তুই সঠিক রাস্তায় আছিস। पंकज जी, ये बताइए कि बहुत डिस्कशन हमने किया है और भी बहुत बाकी है, आगे और भी एपिसोड शायद करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, कि ये जो लोग सोचते हैं ना कि मेरा तो अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है, मैं क्या ट्रेडर बन सकता हूँ, मेरा तो कमर्शियल कुछ नॉलेज नहीं है, मैं क्या ट्रेडर बन सकता हूँ। तो ये नॉलेज लेने का जो प्रोसेस है, ये कहाँ से शुरुआत हो सकता है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अगर ट्रेडिंग या फिर जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं,
वो अपना लाइफ को ना स्टार्ट विथ वाई। एंड व्हाट इज द स्टार्ट विथ वाई? सब लोग कंफ्यूज हैं कि उनको करना क्या है। अगर अपने लाइफ में आप वाई डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप कुछ डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस किस फील्ड में जा रहे हो वो क्यों जा रहे हो, और जितना ज्यादा आप स्ट्रांगली उस वाई से कनेक्टेड रहोगे। मैं एग्जांपल एक आपको बताता हूं। मान के चलो कि दो बिल्डिंग है, दोनों 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, साइड बाय साइड दोनों बिल्डिंग है। ओके, अब उसके जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे, मतलब अगर लेंथ में बोल दूं कि थोड़ा सा हाइट, ज्यादा हाइट नहीं, छोटा सा हाइट, अब यहां से लेके उस एक बिल्डिंग दोनों बगल है, एक बिल्डिंग से लेके दूसरे बिल्डिंग में एक लकड़ी का तख्त रख देता हूं। ठीक है, ज्यादा हाइट नहीं है, बस मान के चलो कि 10 फीट होगा हाइट, और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 10,000 दे रहा हूं, आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग क्रॉस कर जाओ, तो कर जाओगे? 10,000 10 फीट कोई भी कर जाएगा, एवरीबॉडी कर ही जाएगा। ठीक है, आप भी कर जाओगे, 10,000 मिल रहा, 10 फीट है, इतना चौड़ा, कोई रिस्क नहीं है। बट अब मैं उसी चीज को, अगर मैं उस लकड़ी को 10th फ्लोर में रख दूं, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक, ओके, और हाइट बहुत हाई है, अब मैं आपको 20,000 दे रहा हूं बिना सेफ्टी का, आप यहां से लेके वहां तक क्रॉस करोगे? नहीं करेंगे। 30,000 दे रहा हूं, करोगे? ज्यादातर लोग तो नहीं करोगे, क्योंकि ज्यादा 100% लोग नहीं करेंगे, उसका जिंदगी का मामला है। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी भी आप ना इस जगह से उस जगह ना फ्री में क्रॉस कर जाओगे, मुझे कुछ आपको पैसे देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या हो सकता है वो रीजन? मान के चलो कि आपके बगल वाली बिल्डिंग में, आप इस बिल्डिंग में हो, छत पे हो, बगल वाली बिल्डिंग में आग लगा है, और उस बिल्डिंग के छत पे आपका कोई जिससे बहुत आप अटैच हो, इमोशनली अटैच हो, फैमिली का मेंबर, अब क्या लगता है आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, तो बचाने आप के बिना लिए जाएगा। हाँ। बचाने के लिए तुरंत। अब वहां पे आपका बचाने के लिए जाने के लिए क्या कनेक्शन था? रिश्ता, आपका relation। वाई क्लियर था। इसी को मैं कंसेप्ट में लेता हूं इसको, जब तक आपका लाइफ में ना आपका वाई क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप किसी काम को ना शिद्दत से नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट क्लियर हो वाई। आप इस ट्रेडिंग में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो? नॉट फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप डेडिकेशन दे दोगे 3 मंथ 4 मंथ, तो आप फाइनेंशियल फ्री ऐसे भी हो जाओगे, बट नॉट फॉर द फाइनेंशियल। आप जब तक इसमें इमोशनली, किसी भी काम में अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तब तक उसमें आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको उससे इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। और हमारे ब्लड में भी ट्रेडिंग बस चुका है, आप देख सकते हो, हमारे ब्लड में भी ट्रेडिंग बस चुका है। ये तो भी और भी बहुत सारे कुछ करवाना भी है, तो उस चीज को इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप और ऊपर वाला ही जो रहता है ना, ऐसी चीजें कि शेयर करो जो आप और ऊपर वाला ही जानता हो, तीसरा कोई नहीं। ठीक है, तो वो जो इमोशनली कनेक्शन जब तक नहीं होगा, तब तक आप ट्रेडिंग पे आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। और वो केवल फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो, तो उससे आप भी कुछ सीख नहीं पाओगे। उसका एंड प्रोडक्ट भी होना चाहिए, आगे चल के उससे आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या आप उससे आगे कर सकते हो, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एंड ट्रेडिंग जो है सबके लिए है। ट्रेडिंग किसी का कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग केवल जो MBA किया हुआ है, जो MBBS किया है, या फिर ज्यादा नॉलेज है वो ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको जीरो नॉलेज, कुछ भी नहीं है, वो कभी स्कूल तक नहीं गए, वो आज ट्रेडर बन के बैठे हुए हैं और अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। तो देयर इज नो एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देयर इज नो एनी एज बैरियर। पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट को सीखना या जानना भी सबसे बहुत We काम have करता है। many success stories। हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरी है। इतना सक्सेस स्टोरी है कि कोई भी इंस्पायर हो सकता है। मतलब इस लेवल की 16-17 साल के बच्चा भी आराम से प्रॉफिट कमा रहा है मार्केट से। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उन्होंने अच्छे गुरु पकड़कर, प्रॉपर गाइडेंस, ज्वाइन कर इंटरेक्ट होकर पूरी चीज को सीखा है। सीखने के बाद उसी सेम डायरेक्शन में, उसी सेम दिखाए गए रास्ते पर चल रहा है, तो पैसा कमा।